Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Moatter Hanif. I'm Assistant Editor at Medical News Pakistan, and I'm so excited to welcome you all to this live session, Nutrition, Immunity, and COVID-19. We have with us today Ms. Sumbal Arif. She is a clinical dietitian and nutritionist. She's also the founder of the Diet Wall and wellness coach at BXN International. Along with that, she has following on social media with around 50K followers. And today we'll be discussing about the nutrition and the diet that one should follow for, especially during the pandemic of COVID-19. Because in times like these, we really need to boost our immunity and all of that. So, I welcome to this session, Ms. Sumbal. How are you? Assalamualaikum. I'm fine, Dr. Moatter. How is you? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सो सुम्बल हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं फिर जी Assalamualaikum. Myself Sumbal Arif, and I'm here to present the topic COVID-19 immunity and nutrition. So, as you all know that it's pandemic 2020, like 2019 से start हुआ था और then अभी तक ये continue है. तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19, व्हाट इज़ कोविड-19 एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन with COVID-19. As you all know that adequate and appropriate nutrition is required for all the cells to function optimally. And this includes the cells in the immune system. An activated immune system further increases the demand for energy during periods of infection like COVID-19. We have to take balanced diet and maintain healthy BMI to strengthen your immune system. हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होती है जो कि हम फूड के थ्रू से ले सकते हैं. उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लाइक एवरीथिंग यू नीड टू strengthen your immune system. The contents included in this presentation are what is COVID-19, its causes, its symptoms, its like what is immunity and what is the relation between COVID-19 and immunity. The gender dietary guidelines. There are five food groups, and we all have to know that what are these groups and how they play the role in our immunity, in our body to function properly. Next is how to strengthen your immunity. What are the micronutrients, foods that fight for the immunity? And I also have some drink recipe and a snack to strengthen the immune system. So let's start now. What is COVID-19? Coronavirus disease, that is also known as COVID-19, is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome, and it is also known as SARS. It was first identified in December 2019 in Wuhan, Hubei, China, and has resulted in an ongoing pandemic. Like इसकी जो हिस्ट्री है वो जूनोटिक ओरिजिन से है और इसको हम it is also known as bad coronavirus. It converts from bad to human, and it is so that's why it is called bad to human infection. The overall cases of coronavirus in the overall world is 11,193,565. The total deaths occur 529,127. The overall recovered patients are 6,331,335, and here is a picture that contains the overall patients of coronavirus in Pakistan. Like
It's yesterday's number of patients 4,087. Total coronavirus patients are present in Pakistan. Here is the picture and it is from BBC News. It that इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि कोविड-19 जो है उसकी वजह से मार्च में कितनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं. लाइक कोविड-19 वाज द थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ इन मार्च. इसमें एज स्टैंडर्ड जो था वो 100,000 पीपल थे और इसमें लाइक जितनी भी दुनिया में डिजीज़ हैं लाइक सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़, कोरोना वायरस, इस्केमिक डिजीज़ और डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये जो चंद क्रोनिक डिजीज़ हैं ये साथ ही मार्च में जो है वो कोरोना वायरस की वजह से उनकी वो वर्ल्ड वाइड उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी. तो मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि दुनिया में जितने भी पैंडेमिक्स गुजर चुके हैं उसमें जो लास्ट 3 पैंडेमिक्स थे उसमें से जो था एक स्वाइन फ्लू था 2009 टू 2010 तक इसका रहा और द सेकेंड वन इज़ वेस्ट अफ्रीकन इबोला एपिडेमिक. ये 2014 से 2016 तक रहा. एंड द नेक्स्ट इज जीका वायरस एपिडेमिक 2015 से ये अभी तक प्रेजेंट है और ये साउथ अमेरिका में हुआ था. इसके अलावा जो अब करंट सिचुएशन है जो कि चाइना से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस का और बैट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ और अभी तक ऑन गोइंग है और इससे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डेथ्स हो चुकी हैं और इट्स कंटिन्यूइंग. So I'm like this. I want to discuss the causes. Like इसमें मतलब एक ये वायरस है और ये एक ऐसा वायरस है जो कि SARS-CoV-2 भी कहते हैं इसे और ये ट्रिगर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को. Like doctors say that it triggers the respiratory tract infection or it can also affect our upper respiratory tract infection tract and lower respiratory tract. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो चीज़ें इंक्लूड्स हैं वो साइनसेस, नोज एंड थ्रोट. तो इसके अलावा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमारे पास विंड पाइप होता है और लंग्स और ये टोटली डैमेज कर देता है हमारे लंग्स को. उसमें जो ब्रोंकायोल्स होती हैं, एल्वेलाइज होती हैं, जो हमारा टोटली ब्रीथिंग सिस्टम है ऑसोफेगस से लेकर विंड पाइप और जो लाइक ब्रीथिंग सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इससे. समटाइम्स तो इसके सिम्टम्स शो होते हैं हमें लेकिन समटाइम्स इसके सिम्टम्स बिल्कुल भी शो नहीं होते. तो यहाँ पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हमें लाइक फॉलो करने चाहिए इससे प्रिवेंट करने के लिए. लाइक हम कोरोना वायरस से किस तरह से बच सकते हैं. सबसे पहले तो हमें अपने जो हाथ हैं वो अच्छी तरह से धोने चाहिए. Like first of all, wash your hands. You can use Dettol, you can use soap or antibacterial soaps, antiviral soaps वगैरह जो भी आप यूज़ कर सकते हैं. Like hand wash is the best option. सोप से ज़्यादा बेटर है कि आप हैंड वॉश यूज़ करें और देन सैनिटाइज भी. एंड द सेकेंड वन इज़ यूज़ अ टिश्यू फॉर कफ. लाइक जब आपको स्नीजिंग हो, कफिंग हो तो आप अपने फेस पर हाथ रखें या आप टिश्यू का यूज़ करें और किसी रुमाल या कपड़े वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं. तो लाइक ध्यान रहे कि आपके जो इन्फेक्शंस हैं वो लाइक फैले ना. अगर तो आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन है लाइक साइनस वगैरह का इशू है और अवॉइड टचिंग योर फेस. लाइक आप कहीं पर भी जाते हैं आप टच करते हैं, जाहिर है जहाँ जिस भी जगह पर होते हैं किसी न किसी चीज़ को हमारा रहता है कि हम उस चीज़ को टच करते हैं. तो अवॉइड करना चाहिए फिर हमें कि हम अपने फेस को टच ना करें बिकॉज ये जो वायरस है ये नोज़, माउथ और इन मतलब ओपन जो हमारी बॉडी में हैं चीज़ें उनके थ्रू ही ये बॉडी में एंटर होता है और फिर डिस्ट्रक्शन कोज करता है, डैमेज कोज करता है. और इसके अलावा लाइक इसके सिम्टम्स तो टोटली कुछ पेशेंट्स में तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो शो ही नहीं होते.
और अगर तो लाइक 15 to 20 days आर रिक्वायर्ड समटाइम्स कि एक पेशेंट है उसको कोरोना वायरस हो चुका है, लेकिन मतलब वो खुद भी नोट नहीं कर पाता और दूसरे भी नोट नहीं कर पाते। लाइक अगर हमें सिंपल कॉमन फ्लू भी हो जाता है या गला खराब हो जाता है, हम अपनी सेंसेस लूज कर लेते हैं स्मेल टेस्ट की, तो हम उस चीज़ को नहीं लेते कि लाइक हमें कोरोना वायरस हो चुका है। उस चीज़ को एग्री नहीं करते या फिर टेस्ट नहीं करवाते, ला इल्म होते हैं लाइक उस चीज़ से, तो फिर हम इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। एक पेशेंट को पता ही नहीं है, लेकिन एक पर्सन है उसको पता ही नहीं है कि मैं कोरोना वायरस का पेशेंट हूँ, तो वो लाइक दूसरों से मिलता जुलता भी है, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठता है, उठता है, खाना खाता है, जो भी मतलब होता है, तो वो फिर इस तरह से एक पर्सन से पूरी फैमिली अफेक्ट होती है, फ्रेंड्स इन्वायरमेंट सारा अफेक्ट हो जाता है। तो बेटर यही है कि अगर तो आपको थोड़ा सा भी कुछ इस तरह का सिम्टम्स वगैरह शो हो तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, क्वारंटाइन होना चाहिए। और लाइक सिम्टम्स भी हैं इसमें, तो यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो उसमें फीवर आ जाता है, कफ, फटीग, ट्रबल ब्रीथिंग, चिल्स, बॉडी एक और सोर थ्रोट, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, नोजिया फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है और डायरिया भी। लाइक इस किस्म के अगर आपको सिम्टम्स हैं या फिर अगर आपको सिम्टम्स बिल्कुल भी शो नहीं भी हुए तो भी एहतियातन आपको लाइक टेस्ट तो करवाना ही होता है ताकि एक चीज़ कंफर्म हो जाए। लाइक ये तो था सब इंट्रोडक्शन जो कि कोविड का था, कोविड-19 का। अब मैं इस टॉपिक पर आऊँगी कि हमारा इम्यूनिटी का क्या रोल है कोविड-19 के साथ और न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है। और इम्यूनिटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो होती है वो उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी बॉडी में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक पैथोजेंस वगैरह होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होनी चाहिए कि वो इजीली हमारी बॉडी को डिफेंस कर सके और इन वायरसेस को, इन बैक्टीरियाज जो भी डिजीजेस कॉज करने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनसे लड़ सके ताकि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो ना फैल पाए। तो इसमें ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक ऐसा होस्ट डिफेंस सिस्टम है जो कि मतलब जिसमें बहुत से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिजीज। और to function properly, an immune system must detect a wide variety of agents known as pathogens, from viruses to parasitic forms, and distinguish them from the organisms on healthy tissue. लाइक ऐसे पैथोजेंस उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो फाइट कर सके। और जिन पर्सनस की, जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है वो फिर फाइट नहीं कर पाते, उससे उस तरह से उनका सर्वाइवल रेट भी कम हो जाता है। और इसका लाइक काफ़ी अफेक्ट है पेंडेमिक्स में और ओवरऑल जितने भी हैं डिजीज़ वगैरह। तो इसमें नेक्स्ट ये है कि डाइटरी गाइडलाइंस हमें हम नॉर्मल लाइफ में भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिशन, क्या क्या डाइटरी गाइडलाइंस हमें चाहिए होती हैं जिनको फॉलो और हम एक हेल्दी लाइफ गुजारें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और हमारे जो डिजीज़ रेट है, हमारा जो डिजीज़ रेट है बॉडी में, जो बीमारियां वगैरह जो भी फैल सकती हैं उनसे लड़ने की ताकत हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हो। तो इसमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जनरल डाइटरी गाइडलाइंस हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें अपना जो कंजम्पशन है इंक्रीज़ करना चाहिए रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। लाइक इंक्रीज योर कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद एटलीस्ट 5 सर्विंग्स अ डे। हमें 5 सर्विंग्स लेनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। और
ये इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि दे कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन ए एंड सी एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अदर मिनरल्स एक्सेट्रा, in addition to antioxidants which will help you fight infections. Like antioxidants बहुत important रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शंस से फाइट करने के लिए. ऑन द अदर हैंड हमें रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा लिग्यूम्स भी लेने चाहिए. तो लाइक एटलीस्ट 3 times a week, और लाइक ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं और हमें इनएक्सपेंसिव भी होते हैं और दे विल कीप यू स्टे हेल्दी बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन्स एंड आयरन. लाइक आयरन और प्रोटीन ये सब चीज़ें, वाइटामिन्स, मिनरल्स हमें एक बैलेंस्ड अमाउंट में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए. और हमें मतलब होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस अमाउंट में हमें लेनी है डेली रिक्वायरमेंट्स में, डेली बेसिस पर, ताकि हमारी बॉडी जो है वो फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके. 5 फूड ग्रुप्स जो होते हैं, लाइक वी हैव अ फूड पिरामिड. तो फूड पिरामिड में 5 फूड ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं. और बेस्ट वे जो ये होता है कि वो हम ये है कि ईट हेल्दी फूड और चूज अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड. 5 फूड ग्रुप्स जो हैं वो हमें एवरीडे लेने हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड एंड सीरियल्स आते हैं. लाइक सबसे टॉप लेवल पर हमें ये चीज़ जो है वो डेली बेसिस पर लाइक 6 और मोर पोर्शंस हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. और सेकेंड नंबर पर आता है फ्रूट्स एंड वेजीज. हमें फ्रूट्स एंड वेजीज के 5 पोर्शंस कंज्यूम करने हैं. और मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट अगर हम देखें तो इसमें इसके 3 पोर्शंस इंक्लूड हैं. लाइक आप मिल्क ले सकते हैं एक टाइम में. अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो नेक्स्ट पोर्शन में आप चीज़, योगर्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं जो मिल्क से लाइक प्रोसेस की जाती हैं, नेक्स्ट मतलब मिल्क से बनी हुई जो दूध और दूध से बनी हुई अशिया, उनका इस्तेमाल हमें दिन में 3 मरतबा करना चाहिए. और इसके अलावा नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है मीट, फिश, एग्स एंड नट्स वगैरह. लाइक हमारा प्रोटीन पोर्शन जो है इसके हमें डेली रिक्वायरमेंट में पोर्शन चाहिए होते हैं. एंड द लास्ट वन इज फैट, शुगर, स्नैक्स और ड्रिंक्स. लाइक ये चीज़ें हमें बहुत कम अमाउंट में लेनी चाहिए, लाइक स्पेरिंगली, जिनकी जस्ट बॉडी में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम इनका एक्सेस यूज़ करेंगे, एक्सेस स्टार्ट कर देंगे, तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म दे सकती है. लाइक फैट्स, अगर हम फैट्स का इंटेक, शुगर, स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह का इंटेक अगर हम ज़्यादा कर दें तो हम ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं. हमें कार्डियोवास्कुलर सीवीडीज का खतरा होता है, हमें डायबिटीज़ का जो चांसेस हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. तो इसके अलावा लाइक हमें इन जो फूड ग्रुप्स का इस्तेमाल है वो प्रॉपर्ली और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग लाइक स्ट्रेंथन हो सके और लाइक उसकी फाइटिंग डिफेंस जो पावर है वो ठीक रहे. और देयर आर सम वेज and there are some preventions too, from which we can strengthen our immunity. Like अगर तो एक बंदा स्मोकर है, like if you are smoking, तो avoid smoking. लाइक आपको पता है कि इससे लंग्स के लंग्स इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्मोकिंग. तो लाइक इट्स अ हार्मफुल थिंग, तो अवॉइड करनी चाहिए हमें स्मोकिंग. लाइक एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग बहुत हमें अवॉइड करनी चाहिए. कंज्यूम रॉ फ्रूट्स एंड वेजीज. एक्सरसाइज जो है वो हमारी डेली बेसिस पर होनी चाहिए. लाइक पैंडेमिक्स में हम आउटडोर नहीं जा सकते तो हमें घर में एटलीस्ट थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए, कार्डियो करनी चाहिए, पुशअप्स कर लेनी चाहिए. लाइक इस तरह की चीज़ें हमें एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए ताकि जो हम अपना कंजम्पशन ले रहे हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकें और हेल्दी वेट की तरफ जाना चाहिए. लाइक हमें हेल्दी पोर्शंस लेने चाहिए बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ये नहीं कि हम एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज़ ले रहे हैं. किसी भी चीज़ का एक्सेस जो यूज़ है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है. और नेक्स्ट लाइक अगर तो आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं ओवरऑल बात करूँगी, तो अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो वो मॉडरेशन में लें, ताकि इससे भी आपका जो इम्यूनिटी है वो अफेक्ट ना हो.
और एडिक्वेट स्लीप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो स्लीप है वो प्रॉपर होनी चाहिए 8 आवर्स या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक एक पर्सन जो है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन्हें अपनी एज के अकॉर्डिंग लाइक प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी लाइक अपसेट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो स्लीप होती है वो 8 घंटे की वो ज़रूरी होती है इम्यून सिस्टम को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट, स्टे हाइजीन। लाइक कोविड में तो एक्स्ट्रा हाइजीन रहना चाहिए। लाइक आप you have to use sanitizers, you have to use Dettol, wash your hands and take shower daily to and like आपको हर तरह की just आपके बॉडी के लिए नहीं, लेकिन आपको अपनी हर चीज़ में अपनी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। लाइक घर में आपको क्लीन रहना चाहिए। आप जब कोई फूड किचन में कोई काम कर रहे हैं तो आपकी जो सब यूटेंसिल्स वगैरह हैं, डिश हैं, जो सब चीज़ें हैं या हाइजेनिक होनी चाहिए। ग्लव्स वगैरह यूज़ करें और सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, डेटॉल से मतलब वॉश करें अपने हैंड्स। तो स्टे एक्स्ट्रा हाइजीन इन एवरी एस्पेक्ट। एंड लास्ट वन इज़ टू मिनिमाइज द स्ट्रेस। लाइक अगर आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, एनजाइटी है, कुछ भी है, तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और आपको अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखने के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो डोंट टेक स्ट्रेस। एंड my next slide is all about micronutrients. Micronutrients जो हैं वो एक बहुत essential रोल प्ले करते हैं और इसमें इम्यूनिटी को करने के लिए कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं। लाइक आप देखें तो जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, फोलिक एसिड और विटामिन ए, B6, C एंड E, ये सब जो हैं अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मौजूद नहीं होंगे तो आप इम्यून सिस्टम को अपना बेटर नहीं बना सकते, सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता और इसमें डिजीज़ के अगेंस्ट फाइटिंग करने की ताकत नहीं रहेगी और लाइक आप ज़्यादा तरफ जा सकते हो कि आपको जल्दी डिजीज़ हों, जल्द आप वायरल इन्फेक्शन ले सकते हैं। आपकी बॉडी जो है वो उसमें फिर ओवरकम नहीं करेगी, उसमें फाइटिंग की इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एडल्ट्स के लिए जो अमाउंट है इनमें से जो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से विटामिन ए की जो अमाउंट है वो 900 माइक्रोग्राम फॉर एडल्ट्स मैन एंड 700 माइक्रोग्राम फॉर वुमेन लाइक चाहिए होती है आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा मैं जिंक की आपको बताती हूँ कि लाइक जिंक हमें 8 mg चाहिए होता है वुमेन्स को और 11 mg मेन के लिए, लाइक एडल्ट मेन के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। उसके अलावा मैं आपको फोलेट का बताती चलूँ। फोलेट और फोलिक एसिड जो है वो 400 माइक्रोग्राम पर डे इसकी कंजप्शन हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो ये जो जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, फोलिक एसिड और विटामिन ए, B6, C और E ये जो है ये अगर प्रॉपर अमाउंट में हम नहीं ले रहे डेली बेसिस में तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ऑल्टर कर सकता है। लाइक उसकी डेफिशिएंसी जो है ऑफ दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन ऑल्टर द इम्यून रिस्पॉन्सेस। हमारी इम्यून सिस्टम का सारा जो फंक्शन है वो उलट जाता है, लाइक वो बिल्कुल भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कुछ फूड्स मैंने मेंशन किए हैं, लाइक दीज आर 15 काइंड्स ऑफ फूड्स जो कि हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं, लाइक इन चीज़ों को हम अगर कंज्यूम करें तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बेटर फाइट कर सकती है डिजीज़ के अगेंस्ट। तो इसमें रेड बेल पेपर्स इंक्लूड है, ब्रोकोली, like you can take garlic, ginger, spinach, yogurt, seeds, almonds, green tea, papaya, turmeric, kiwi, shellfish। पाउडर में आप ले सकते हैं लाइक चिकन वगैरह,
प्रॉपर जो मैंने पहले जैसे डिस्कस की हैं उसमें। और ये जो लास्ट 5 हैं ये विटामिन सी ग्रुप में से ऑरेंजेस, क्लेमेंटाइन, टेंजरीन, लेमन एंड लाइम। इन चीज़ों में जो है इन फूड में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन सी इंक्लूड होती है, लाइक गावा अ लॉट ऑफ विटामिन सी। और इसमें जो है विटामिन सी की जो अमाउंट है इसकी 5 to 90 मिलीग्राम पर डे आपको कंज्यूम करनी चाहिए। और अपर लिमिट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 mg पर डे होनी चाहिए। लाइक अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इट कैन कोज डायरिया एंड बर्थ। लाइक आपको वो वॉमिटिंग फील हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लाइक ओवर अमाउंट में आप यूज़ कर लें, विटामिन सी ले लें, इनटेक अगर इनका हो जाए ज़्यादा। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें आप जो है अपनी डाइट में कंज्यूम करें और डेली बेसिस पे इनमें से कुछ ना कुछ आप ऐड करें और ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। So here you can see that a good nutrition have results अगर आप बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपकी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी जो है वो बैलेंस्ड है, अगर आप जो है वो गुड डाइट ले रहे हैं, like good diet is pure diet and the diet that contains the amount of nutrients, vitamins, minerals, micronutrients, etc. Carbs, protein, fats in पोर्शन अमाउंट। लाइक आपको पोर्शंस पता होने चाहिए कि आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या न्यूट्रिशन जो है वो नेसेसरी है। तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्दी चॉइसेस जो होते हैं वो हेल्दी चॉइसेस लीड्स टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ, ईट राइट एंड लिव हेल्दी। तो इसमें मैं आपसे अब इम्यून बूस्टिंग ड्रिंक शेयर करना चाहूँगी। Like this drink is totally amazing. It naturally fermented lemonade soda or it is loaded with probiotics that give it characteristic fizz and foam. A drier soda, lemonade is only slightly sweet and notes of honey play well with lemon. Like serve it over ice, garnished with fresh lemon slices. इधर आप देख सकते हैं कि ये मतलब ड्रिंक है लेमन से जो कि इजीली आप घर में बना सकते हैं और इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। For this you have to take 6 cups water, 1 cup lime, 1 cup tea, 1 cup lemon juice and half cup fresh whey. And next like you have to take a special equipment for that to make that drink. It's the flip top bottle. You can put all these ingredients in that bottle. Like इसमें instructions में ये आ जाएगा, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। Like warm water in a saucepan over low heat, keep just warm enough to dissolve the honey about 100 Fahrenheit. Whisk in the honey continuously until fully dissolved in the water. Turn off the heat and remove the pot from the stove. Whisk the lemon juice and whey into the honey water until fully incorporated. Pour the lemonade through a narrow funnel, flip top bottles and seal the bottle and allow lemonade to sit at room temperature to ferment at least 4 and up to 7 days. Like आपको 4 to 7 days इसको fermentation के लिए लग सकते हैं। और you can open a bottle to check for fizziness on and flavor. Keep in mind that the warmer your kitchen and the more time you allow, the sourer, the more fizzy and your soda will be. Here is a snack recipe that you can take a healthy snack daily to boost your immune system, to support or to strengthen your immune system. And it includes like you can take green salad or you can also take mixed vegetable salad. So have a green salad with good oil and vinegar dressing. So what is good oil? As you all know that we use extra virgin olive oil, we use sunflower oil, etc. to for the dressing of salads. So a great mix might be baby spinach. आप baby spinach ले सकते हैं, rocket sprouts ले सकते हैं, scallions हम ले सकते हैं, हरी प्याज, lots of colorful vegetables भी ले सकते हैं।
और इसमें आपकी मर्जी है, आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, आप बेल पेपर ऐड कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड चना भी, इफ यू वांट टू टेक अ पोर्शन फ्रॉम legumes एंड cereals or grains, so then add boiled legumes, boiled black beans, boiled white beans, etc. Or you can also add chili, red chili, green chili, or vinegar dressing, and you can also add mint, coriander, etc. and salad leaves too, tomatoes and your favorite beans, sprinkle with chopped nuts or seeds too. It's so delicious and yummy. सो ओवरऑल डिस्कशन, तो इससे हमें पता चलता है कि कोविड में या फिर पैंडेमिक्स में हमें किस तरह की न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, एक जनरल गाइडेंस थी ये, और इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें, आपको कौन सी डाइट की गाइडलाइंस, कौन से फूड ग्रुप्स लेने चाहिए ओवरऑल जो है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर अगर एक पेशेंट को कोरोना है, लाइक इसे डायग्नोस हो गया है, तो देन वो 15 डेज के क्वारंटाइन में होगा। तो उसमें क्वारंटाइन डाइट में आप, लाइक मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी डाइट तो ऐसी नहीं है जो कि कोरोना वायरस से हमें प्रिवेंट कर सके, लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि अगर हमें कोरोना हो जाए या हम पेंडेमिक्स में कोई भी वायरल इन्फेक्शन गेन करते हैं तो उसको हम ओवरकम कर सकें, उसको हम क्योर कर सकें। हमारी बॉडी में उससे फाइट करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट डिफेंस मतलब कर सके हमारी बॉडी। और ये इसी सूरत में हो सकती है जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आपके अंदर इतनी ताकत होगी कि आप डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकें। तो अगर तो एक पर्सन क्वारंटाइन में है, उसमें आप ये जो मैंने अमाउंट्स बताई हैं विटामिन्स और मिनरल्स की, ये डेली बेसिस पर आप उन्हें दें। और उसके अलावा आप लीव्स ऑफ तुलसी, नीम, करी पत्ता ये ऐड कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इफेक्टिव हैं इसके लिए। आप टी और ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लाइक टीज आर मेड फ्रॉम लीव्स, तो आपको लीफी जो थिंग्स हैं वो बहुत अमाउंट में लेनी चाहिए। तो इसके लिए आप टी भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स आप किसी भी सूरत में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लाइक आप सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ कैपेबल तो लाइक ईटिंग कर सकता है वो, तो उसको आप सैलेड की फॉर्म में दे सकते हैं। और अगर नहीं तो देन आप उसको लिक्विड फॉर्म में, किसी भी जूस के फॉर्म में, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसे कंज्यूम करवा सकते हैं। और इसके अलावा आंवला और बेरीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लाइक आप किसी भी तरह की बेरीज, ब्लूबेरीज एंड मतलब लाइक अदर काइंड्स ऑफ फ्रूट्स वगैरह, लाइक स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। और आंवला जो है ये बहुत स्पेशली इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स भी ले सकते हैं। ब्लैक क्यूमिन सीड्स होते हैं जिसे हम कलौंजी कहते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को नरिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा गार्लिक जो है वो बहुत इफेक्टिव है, लाइक हमें उसको कुकिंग में हम उसको यूज़ करके तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप उसको कुकिंग की तरफ ना लेकर जाएं। अगर तो आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो उसको लाइक आप चटनी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसे सैलेड्स की फॉर्म में ले सकते हैं, डिप्स वगैरह, या लाइक गार्लिक जो पेस्ट होती हैं उस फॉर्म में आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और इन सब गाइडलाइंस के थ्रू आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर और इफेक्टिव परफॉर्म कर सकता है। सो दिस ओवरऑल डिस्कशन में लाइक ये स्पेशल इशू था न्यूट्रिएंट्स का, और द कलेक्टिव वर्क्स प्रोवाइड अ ब्रेथ ऑफ यूज एंड research indicating the key influence of nutrients and nutrition on the immune responses in health and disease and across the life course. So nutrition जो है वो it plays a vital role in our bodies, in our lives, in a daily basis. जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हमारा फूड कंजम्पशन है, हमारे वेज हैं, ईटिंग वेज हैं, हमारी हाइजीन आ जाती है उसमें।
हमारी एब्जॉर्प्शन, हमारी थिंकिंग, हमारा सब कुछ उसमें आता है। लाइक अगर तो हम इम्यून सिस्टम को हम रिलेट करते हैं कि हम वी हैव इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन आवर इम्यूनिटी, वी हैव इफेक्ट ऑफ exercise on our immunity, we have effect of stress on our immunity too. So nutrients may impact directly or indirectly upon immune cells, causing changes in their function, or may exert effects via changes in the gut microbiome. A better understanding of the role of nutrients in immune system and will facilitate the use of bespoke nutrition to improve human health. Thank you. Thank you, Ms. Umar. It was a wonderful presentation. I had a couple of questions that I wanted to add. Can I? Yes, sure. जी सबसे पहले तो सवाल ये है कि एक फियर है फॉर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स नाउ और एक मतलब आजकल एक ऐसा प्रोपेगेंडा भी अगर हम उसे कह सकें कि फैल रहा है कि पोल्ट्री जो आइटम्स होते हैं उसके अंदर कोविड-19 के वायरस हो सकते हैं तो डू यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग अबाउट इट जी अब तो जो वायरस है वो लाइक दैट आई हैव हियर्ड दैट इट्स प्रेजेंट इन द चिकन टू, so we have to avoid chicken like तो उसमें है और तो हमें नहीं लेना चाहिए, उसका इंटेक नहीं करना चाहिए। लाइक यू कैन टेक मीट, you can take fish, or you can add like prawns, etc., any kind of fish, any kind of meat or beef. You have to avoid chicken. Like I have heard that chicken में ये कोरोना वायरस है, तो चिकन तो वैसे भी डेली इंटेक उसका इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये आपको पता है कि ये ब्रॉयलर है और जो चीज़ लाइक आर्टिफिशियल थिंग्स हैं उसके तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम रॉ चीज़ें लें और नेचुरल की तरफ जाएं, बनिस्बत इसके कि हम सिंथेसाइज्ड की तरफ जाएं और आर्टिफिशियल थिंग्स की तरफ जाएं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे इम्यूनिटी के। बिल्कुल मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रोज़न प्रोडक्ट से रिलेटेड है बिकॉज एक क्योस जो है उसके रिलेटेड भी है कि फ्रोज़न प्रोडक्ट्स आपको स्पेशली इस टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक और वायरल ट्रांसमिशन डू यू वांट टू ऐड इनटू समथिंग अबाउट इट जी लेकिन आप ये देखें कि इस टाइम में ड्यूरिंग पैंडेमिक्स हम डेली बेसिस पर बाहर नहीं जा सकते मार्केट से कुछ भी हमें अगर परचेज करना है, परचेजिंग करनी है, तो इसमें तो हम हम फ्रोज़न को प्रेफर नहीं करते, लेकिन हमें कुछ प्रोडक्ट्स इस पैंडेमिक में इस तरह से भी यूज़ करनी थी कि लाइक हम डेली बेसिस पर तो परचेजिंग नहीं कर सकते, तो हमें कैंड थिंग्स और फ्रोज़न लाइक हम उस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को कि उनकी जो न्यूट्रिएंट अमाउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है न्यूट्रिएंट्स की, वो अफेक्ट ना हो। लाइक अगर हम वेजिटेबल्स की तरफ जाएँ तो उन्हें हम बॉयल करके और उन्हें हम लेस फ्राई करके तो इजीली स्टोर कर सकते हैं। लाइक आफ्टर कटिंग और आफ्टर वॉशिंग देन कटिंग उन्हें हम बॉयल करके उनके लाइक अपने प्रोसेसेस होते हैं, हम खुद नेचुरली उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। और लाइक ज़ाहिरी बात है हमें इस पैंडेमिक में तो ये सब चीज़ें करना है, लाइक बिल्कुल भी हम इस तरह से तो नहीं रह सकते कि वो चीज़ें फिर हम ले ही ना। और तो इसलिए हमें इस पैंडेमिक में तो वो चीज़ें हमारे लिए था कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बस मैं यही कह सकती हूँ कि ठीक है, बिल्कुल यू कैन टेक। बिल्कुल मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि हम सैलड्स की बात कर रहे थे जिसके अंदर हमारे बेसिकली रॉ वेजिटेबल्स ही होते हैं सो अगर कोई इंटरेस्टेड है वेजिटेबल सैलड बनाने में फॉर इंस्टेंस तो क्लीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट और ये सब चीज़ों के बारे में क्या क्या कहेंगे आप क्योंकि ग्रॉसरीज के बारे में कहा गया है कि वो ग्रॉसरीज जो होती हैं उन पर भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है तो उससे रिलेटेड सवाल है मेरा
ग्रोसरी के लिए ये तो है कि रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सबसे पहले हमें वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद उसको एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स तक आप वाटर में डिप रहने दें। इससे ये होता है कि जो भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी यूज़ किए होते हैं आपने, और जो भी उसमें आर्टिफिशियल थिंग्स जो भी उनकी ग्रोइंग में, उनकी प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं, उनका जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वाटर में से निकल जाती है, और इस तरह से फिर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक वो एक हेल्दी वे है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। और अब तो यही है कि मतलब हम हाइजेनिकली उस चीज़ को प्रॉपरली हाइजीन कर लें और देन उनका इनटेक करें। और लाइक हम वेजिटेबल सैलेड अगर बना रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा वाटर में या गर्म पानी में बॉईल भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर लाइक आप अगर नीम गर्म पानी लें और उसमें टू मिनट्स के लिए उसको डिप कर लें वेजिटेबल्स को, तो आप उसके बाद उसको एज ए सैलेड कंज्यूम कर सकते हैं। और फ्रूट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि उन्हें उसको जो है वो हम 25 to 30 मिनट्स तक डिप करके रखें वाटर में, देन आप उनका कंजम्पशन कर सकते हैं। And with that, we have reached the very end of our session. Thank you, Ms. Sunil, for guiding us through your knowledge and your experience. And I'm sure our listeners have also enjoyed the session as well. Please keep watching medical news and follow us on our social media channels. And don't forget to visit our website, www.medicalnewspk.com. Thank you very much, and Allah Hafiz.